Hello friends, this is DART Daily Current Affairs Revision Test, in which we discuss 5 of the most important MCQs from the best of the sources, that are PIB, The Hindu and Indian Express. This is an initiative by Questlink IAS, and today on 7th of August 2026, Friday, we will be discussing today's 5 MCQs. Our first question is from Governance. The National Handloom Development Program NHDP, implemented by Ministry of Textile, adopts a need-based approach for integrated development of the handloom sector by supporting production, marketing, infrastructure, credit and welfare of the weavers. In this context, consider the following statements. Number 1. The Small Cluster Development Program SCDP provides financial assistance of up to Rs 2 crore for the development of handloom clusters. Number 2. The Mega Cluster Development Program provides central assistance of up to Rs 30 crore per cluster covering at least 10,000 handlooms. The Concessional Credit Weaver Mudra Scheme provides loans to handloom weavers at a concessional interest rate of 6% for 3 years. Which of the following given statements are correct? Option A, 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 1 and 3 only. And option D, 1, 2 and 3. Now you can pause this video and attempt this question on your own. We'll move to the solution and explanation after 3 seconds. But before that, we'll try to tackle this question based on our general understanding or if any elimination method works. By the way, this question is more factual based, fact based. So there are little chances that any elimination method will work here or any. Still, we'll try. Actually, in this question, what you can do, okay, you can go through the question once again. The National Handloom Development Program NHDP, implemented by Ministry of Textile. So the background of the question is given in these statements itself, and the statements here which we have to judge are correct or not are mostly factual. Like here you can see that financial assistance up to Rs 2 crore. Actually, this sounds reasonable, and this also the up to Rs 30 crore for clusters covering at least 10,000 handlooms. So these statements sound reasonable, and actually you cannot determine whether it is right or wrong, and there is nothing extravagant about it. Like if it would have been 200 crores for small cluster development, this would have been outrageous. Here everything seems fine. मतलब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा रेड फ्लैग दिख नहीं रहा है. मैं बोले तो कि कुछ एलिमिनेट करने के लिए वाला एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, वैसा कुछ मिल नहीं रहा है. तो ये फैक्चुअली है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर पे ही आते हैं. इसमें कोई ट्रिक व्रिक लग नहीं रहा और जनरल अंडरस्टैंडिंग पे भी बनाना थोड़ा मुश्किल है. तो इसमें तीनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं. आंसर डी है इसका. आप देख लो एक्सप्लेनेशन, ये आंसर डी है. नेशनल हैंडलूम डे, अभी ये कॉन्टेक्स्ट ये पहला वाला पॉइंट होता है हमारा, हम जानते हैं. तो अभी क्यू न्यूज में था, तो नेशनल हैंडलूम डे है आज 7th अगस्त को. इट कमेमोरेट्स द लॉन्च ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905. अब 1905 में स्वदेशी मूवमेंट ये लॉन्च के दिन को हमने नेशनल हैंडलूम डे घोषित कर दिया, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट मोस्टली जो है कि स्वदेशी कपड़ों को प्रमोट करता था. मतलब वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट ऑफ इट वाज दिस. दैट्स व्हाई इट हैज बीन branded as the National Handloom Day, the day on which the स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड. तो इसमें बॉयकॉट भी था ना, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. तो इसमें पाइल्स ऑफ जो ब्रिटिश क्लोथ्स होते थे, ऐसे उसको ढेरी लगा के उसमें आग लगाते थे, होलिका दहन टाइप का. और फिर खादी और जो भी इंडिजिनस क्लॉथ्स हैं उनको प्रमोट किया जाता था. नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम NHDP इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ये फ्लैगशिप स्कीम है, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम सेक्टर थ्रू क्लस्टर डेवलपमेंट, मार्केटिंग असिस्टेंस, कंसेशनल credit, social security, infrastructure support. The program delivers its wider support through the following key components. तो की कंपोनेंट्स क्या क्या? स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम SCDP 2 करोड़ रुपए के लागत में बनेगा. उसके बाद मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेगा जो बनेगा, स्मॉल वाला 2 करोड़ में बनेगा
और मेगा बनेगा जिसमें 10,000 हैंडलूम प्रोवाइडर्स तक हो, 10,000 हैंडलूम प्रोवाइड कवर करेगा क्लस्टर्स को। तो इसमें 30 करोड़ का इसका बजट है। और उसी तरह कंसेशनल क्रेडिट वीवर जो है मुद्रा स्कीम के तहत हैंडलूम वीवर्स को कंसेशनल इंटरेस्ट रेट 6% के में लोन्स मिलेंगे मुद्रा स्कीम के थ्रू। और इंटरेस्ट सबवेंशन और मार्जिन मनी असिस्टेंस, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट, ये सब भी है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की तरह चलाया जाएगा इसको। तो इस तरह से वीवर्स को हेल्प किया जाएगा। और ये आर्टिकल और अदर कंपोनेंट्स भी एनएचडीपी के हैं। अदर कंपोनेंट्स में हैंडलूम वीवर्स, सोशल सिक्योरिटी, पीएमजेजेबीवाई, और ये जेजेबीवाई जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये सब भी है। 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर, लाइफ इंश्योरेंस, और स्कॉलरशिप भी मिलता है 2 लाख रुपए का। मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, नीड बेस्ड स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो ये सब इसके अदर कंपोनेंट्स हुए एनएचडीपी के। और बेसिक कंपोनेंट्स हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया है। और ये क्वेश्चन लिया गया है पीआईबी के इस आर्टिकल से। पीआईबी बैकग्राउंडर का ये आर्टिकल है, ये हेडलाइन आप जाके पढ़ो, अच्छा आर्टिकल है, होलिस्टिकली कवर किया है इस टॉपिक को। और क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। हमारा एनवायरनमेंट से है दूसरा क्वेश्चन। द टर्म ब्लू जोन विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज रेफर्स टू ऑप्शन ए मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज डेजिग्नेटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ्स एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड identified for exceptionally high life expectancy and healthy aging of their populations, option C areas notified under international law for sustainable management of deep sea mineral resources, option D climate sensitive regions identified by the World Health Organization for monitoring vector borne diseases। तो ये आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो और बनाओ। ये क्वेश्चन हो सकता है बन जाए आपसे, थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। वैसे हम लोग सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन पे 3 सेकंड बाद मूव करेंगे। उससे पहले ट्राई करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग बना पाए कि नहीं। कोई लॉजिक लगा के देखते हैं। ब्लू जोन के बारे में पूछा गया है और ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये वाला पढ़ते हैं, क्लाइमेट सेंसिटिव रीजन आइडेंटिफाइड बाय WHO। ये तो कोई मतलब ही नहीं भाई, क्लाइमेट सेंसिटिव जोन WHO रिकॉग्नाइज कर रहा है, मॉनिटरिंग, ये तो कैंसिल आउट हो गया। मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज डेजिग्नेटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ्स एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी, ये हो सकता है, मतलब ये आपको लग सकता है। इसको एलिमिनेट करना उतना आसान है नहीं, मतलब सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग पे, जब तक आपको एग्जैक्टली ना पता हो कि ब्लू जोन क्या होता है। एरियाज नोटिफाइड अंडर इंटरनेशनल लॉ फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ डीप सी मिनरल रिसोर्सेज, ये भी हो सकता है। Regions of world identified for exceptionally high life expectancy and healthy aging of their population। अब देखो ये तीनों ऑप्शंस काफी क्लोज हैं, और अगर आपको नहीं पता है ब्लू जोन का और आप तुक्का मारने का ट्राई कर रहे हो तो आप एक ही एलिमिनेट कर पाओगे, डी तो एलिमिनेट हो जाएगा। 25-75 पे आप पहुंच जाओगे, 25% चांसेस, 25% आपने निगेट कर दिया, फिर भी 75% अभी भी बचा है आपके पास, यानी 1/3 वाला रेशियो हो जाता है। तो इसमें क्या करना है आपको कि देखो आप इसमें रिस्की हो जाएगा यार। देखो आप अगर आप बिना जाने लगाओगे तो यहाँ मरीन है और यहाँ पे सस्टेनेबल मैनेजमेंट डीप सी है, तो इन दोनों में से आप कोई लगा दोगे। ये तो आइडेंटिफाइड बाय एक्सेप्शनल हाई एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्दी एजिंग, ये तो आप सोच ही नहीं पाओगे। ब्लू से ओशियंस को कनेक्ट करते हैं ना अपन, ब्लू फ्लैग बीचेस और इस तरह से, तो इसको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार ये क्वेश्चन। इसमें आप 1/3 तक ही पहुंच सकते हो, मतलब एक क्वेश्चन नहीं एलिमिनेट कर पाओगे, एक ऑप्शन आप जनरल अंडरस्टैंडिंग पे, अगर आपको ब्लू जोन एग्जैक्टली पता नहीं है। ऐसे ब्लू जोन इसका आंसर बी है। और रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आइडेंटिफाइड फॉर एक्सेप्शनली हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्दी एजिंग ऑफ देयर पॉपुलेशन, ये है इसका आंसर। अब देखो एक्सप्लेनेशन बी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू जोन वाज रिसेंटली इन न्यूज फॉलोइंग द रिपोर्ट्स ऑफ ओजिमी विलेज इन ओकी Nawa of Japan, one of the world's best known regions with high concentration of centenarians and healthy elderly people। अब यहाँ पे क्या है कि centenarian मतलब कि 100 साल के लोग, 100 साल के से और या उससे ज़्यादा के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पे हैं, और वहाँ पे elderly population बहुत healthy है, तो इसलिए वो न्यूज़ में था। और ब्लू जोन आर नॉट मरीन कंजर्वेशन एरिया, ये देखो मरीन कंजर्वेशन एरिया नहीं है। ब्लू जोन इज जियोग्राफिकल रीजन वेयर पीपल लिव एक्सेप्शनली लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ्स विदाउट which unusually high number of centenarians, people aged 100 years or more,
द कॉन्सेप्ट वॉच, देखो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था डैन बुटनर ने। ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है विथ माइक पोलेन, लेकिन फिर भी देख लो, अपने हमने दे दिया यहाँ पे। अब देखो कि कौन कौन से जोन जो वर्ल्ड में कौन कौन से जो एरियाज हैं उनको ब्लू जोन की तरह रिकॉग्नाइज किया है, यहाँ पे लिस्ट है। एक तो ये न्यूज में ही है, ओकिनावा जापान एशिया का, और फिर सार्डिनिया है इटली में, एक आइलैंड है छोटा सा, ये यूरोप में ये भी है। फिर निकाया पेनिनसुला है कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका में। इकारिया ग्रीस यूरोप में। लोमा लिंडा कैलिफोर्निया यूएसए नॉर्थ अमेरिका। तो यूएसए में भी कैलिफोर्निया में लोमा लिंडा करके एक जगह है, मतलब वो भी ब्लू जोन में आता है। और यहाँ पे कॉमन लाइफस्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं यहाँ के इस ब्लू जोन के? प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं लोग, लिमिटेड प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल कम या नहीं के बराबर कंज्यूम करते हैं, और नेचुरल डेली फिजिकल एक्टिविटी थ्रू फार्मिंग वॉकिंग हाउस होल्ड वर्क। तो नेचुरल डेली एक्टिविटी उनका हो रहा है फिजिकल, जिम भी नहीं भी जा रहे हैं या जा भी रहे हैं, फिर भी फार्मिंग वॉकिंग मैंने नॉर्मल एक्टिविटीज से उनका डेली फिजिकल एक्टिविटी हो जा रहा है। मॉडरेट कैलोरी इनटेक उनका मतलब लिमिट में रहता है। हेरा हुची बू ईट अंटिल अबाउट 80% फुल। ओकिनावा प्रिंसिपल, ओके ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये इंटरेस्टिंग है। देखो हारा हाची बू, ये ओकिनावन प्रिंसिपल है। इसमें क्या कहते हैं कि जितना आपको भूख है उससे 80% ही खाओ, पूरा एकदम एपेटाइट से भी ज्यादा नहीं खाना है, एकदम फूल होके भी नहीं खाना है, थोड़ा कम ही खाना होता है। ये हमारे इंडिया में भी बोलते हैं, आयुर्वेदा में भी, और फिर बड़े बुजुर्ग तो बोलते हैं कि भाई जितना भूख हो उससे कम ही खाया करो। स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड कम्युनिटी बॉन्ड्स विद एक्टिव सोशल एंगेजमेंट। अब देखो ये भी बड़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर कहीं पे बढ़ानी है तो सोशल एंगेजमेंट सोशल फैब्रिक स्ट्रांग होना चाहिए। फैमिली का सपोर्ट और ये सब बहुत जरूरी होता है मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए। क्लियर सेंस ऑफ पर्पस, इकिगाई इन जापान, प्लान डे विडा इन कोस्टा रिका। अब क्या होता है कि पर्पस भी इंसान को पता होना चाहिए लाइफ का। अब इससे जो है डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस ये सब नहीं होता है। अगर आपको क्लियर सेंस ऑफ पर्पस है अपने लाइफ को लेके तो भी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। लो स्ट्रेस लेवल्स, एडिक्वेट स्लीप, तो ये सब कॉमन फैक्टर्स जो हैं, दीज आर कंसिडर्ड ऑब्जर्वेशनल लाइफस्टाइल पैटर्न्स रेदर देन साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड काउजेज ऑफ लॉन्जेविटी। तो आंसर बी है। हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन लिया, और यहाँ पे देखो ब्लू जोन का मैप भी दिया है हमारे पास, कौन कौन से एरिया थे, वहाँ जो लिस्ट दिया था उसी को हमने मैप में करके दे दिया आपको। आप इसको ध्यान में रख सकते हो। ये लोमा लिंडा है कैलिफोर्निया में यहाँ पे, और नकोया पेनिनसुला कोस्टा रिका यहाँ सेंट्रल अमेरिका में, फिर सार्डिनिया इटली में, और इकारिया ग्रीस में, ये देखो, और ये ओकिनावा जो न्यूज में था जापान में। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन लाइफस्टाइल पैटर्न भी दे दिया है यहाँ लिस्ट में, आप पढ़ लेना अच्छे से। और ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है? देखो ये प्रेस रीडर का आर्टिकल है। तो प्रेस रीडर क्या है कि आप बोलोगे कि यार द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी का आपने बोला था, ये प्रेस रीडर कौन सा है? प्रेस रीडर एक्चुअली या प्रेस रीडर हो गया या एएनआई हो गया, इस तरह की एजेंसीज होती हैं जो कि जिनका टाई अप होता है। तो ये द हिंदू का ही आर्टिकल है, लेकिन ओरिजिनली आप ढूंढने जाओगे नेट पे तो आपको प्रेस रीडर पे मिलेगा। ऐसे द हिंदू के प्रिंट एडिशन में और या फिर ई पेपर एडिशन में आपको वो द हिंदू में मिल जाएगा आर्टिकल, उनका वो टाई अप होता है। तो प्रेस रीडर का आर्टिकल को द हिंदू भी छापता है। ओके, इसमें ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं है किस किस का आर्टिकल दे रहे हैं। ये रहा आपका हेडलाइन, आप जाके पढ़ो इस आर्टिकल को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इकोनॉमी से है। विथ रेफरेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म एंड लेंडिंग रेट्स इन एन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Number 1, the cost of credit depends not only on policy interest rates but also on the cost of identifying, evaluating, and monitoring borrowers. Number 2, a prolonged period of negative real interest rates can encourage banks to undertake greater credit risk for relaxing lending standards. Which of the statements given above is or are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. अब आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। हम लोग 3 सेकंड बाद एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। उससे पहले हम लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को जनरल अंडरस्टैंडिंग, या नहीं तो फिर कोई एलिमिनेशन ट्रिक लग जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया लेंडिंग रेट्स के बारे में। लेंडिंग रेट से रिलेटेड ये है।
तो पहला वाला स्टेटमेंट है, द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बट ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग, मॉनिटरिंग बोरोवर्स। तो ये तो है ही भाई, अगर आपको बोरोवर्स को आइडेंटिफाई करने में, मॉनिटर करने में और इवेल्युएट करने में कोई जो भी खर्चा आ रहा है भाई, तो वो तो जुड़ेगा ही आपके इसमें कॉस्ट ऑफ क्रेडिट में। तो ये सही स्टेटमेंट है। और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ निगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स कैन इनकरेज बैंक्स टू अंडरटेक ग्रेटर क्रेडिट रिस्क। अब क्या कि निगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा दिन तक रहेगा तो बैंक्स पे प्रेशर तो पड़ेगा ही ना भाई, कि आपको कम करना है निगेटिव इंटरेस्ट रेट्स को, मतलब पॉजिटिव करना है या फिर ये। तो इससे बैंक्स को रिस्क लेने के लिए मजबूर होंगे वो। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। वो जनरलिस्टिक से स्टेटमेंट्स है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से ये समझ जाओगे कि ये सही है। तो इसमें आंसर सी है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये अब रिसेंट डिस्कशन हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, ये तो होता ही रहता है। सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन लोअर इंटरेस्ट रेट बट ऑल्सो ऑन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ क्रेडिट इंटरमीडिएशन एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क से रिलेटेड जो भी है, या फिर इफिशियंसी जो बढ़ाने को है लेकर, ना कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट लोअर करने से ही से मॉनेटरी पॉलिसी में सुधार होगा या इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। और बाकी दोनों स्टेटमेंट्स हमने वहाँ जिक्र कर ही दिया, ये उतना कुछ खास है नहीं इसमें समझने जैसा। ये तो नॉर्मली भी आप डिड्यूस कर सकते हो लॉजिकली कि भाई ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और आंसर सी है हमारा। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, ये इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से लिया गया है। इट्स नॉट जस्ट इंटरेस्ट रेट्स, चीप क्रेडिट कॉस्ट्स मोर। तो इसको आप जाके पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा गवर्नेंस से रिलेटेड। पहले मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। The Union Cabinet recently approved the Govardhan Scheme, galvanizing organic bioagro resource dhan scheme, as the national circular bioenergy scheme to promote a circular bioeconomy, strengthen India's energy security and scale up domestic production of compressed biogas (CBG). In this context, which of the following are among the 6 major growth engines of the scheme? 1. Assured compressed biogas CBG offtake framework. Number 2, stable compressed biogas CBG price framework. Number 3, credit guarantee support. And number 4, CBG ecosystem challenge fund. Select the correct answer using the code given below. Option A 1 and 2 only. Option B 1, 2 and 3 only. Option C 2, 3 and 4 only. And option D 1, 2, 3, 4 all. तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आसानी क्वेश्चन है, ये आसानी बन गया मेरे से, मैंने फ्रेम किया है। और हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, उससे पहले इसको देख लेते हैं एक बार। गोवर्धन स्कीम के बारे में है। ये स्कीम है बायोगैस से रिलेटेड। तो इसमें पूछा है कि 6 मेजर ग्रोथ इंजन क्या है इसके। तो 6 मेजर ग्रोथ इंजन में देखो, एक सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस ऑफटेक फ्रेमवर्क और प्राइसिंग फ्रेमवर्क, दोनों में सीबीजी जुड़ा है, ये दोनों तो होंगे ही। और सीबीजी इकोसिस्टम चैलेंज फंड, इसमें भी सीबीजी है, इकोसिस्टम चैलेंज फंड होगा ही भाई। तो 1, 2, 4 तो ऐसी मतलब सिर्फ नाम में ही इसमें आ गया सीबीजी सीपीजी। ये आसानी फ्रेम हो गया क्वेश्चन। और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन होगा ही भाई। देखो, अगर कोई स्कीम चल रही है तो उसमें क्रेडिट गारंटी इस तरह का सपोर्ट मैकेनिज्म तो देंगे ही। तो इसमें आंसर डी है, ऑल आर करेक्ट। और ये आसानी था। अब देख लो आप इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या क्या दिया है कि गोवर्धन स्कीम जो था हैज बीन अप्रूव्ड एज द नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम टू डेवलप अ रोबस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस। अब क्या किया इन्होंने कि इस स्कीम को एक तरह से अपग्रेड कर दिया इस स्कीम को, गोवर्धन स्कीम को नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम के रूप में इसको अप्रूव कर दिया गया, यानी अपग्रेड हो गया है इसका पोजीशन हो गया। तो इसमें बजट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। द स्कीम प्रोवाइड्स एन एश्योर्ड सीबीजी ऑफटेक फ्रेमवर्क। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीडीजी एंटिटीज विल प्रोक्योर सीबीजी टू मीट नोटिफाइड ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन। तो ये सब डिटेल्स हैं इसके, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। And introduced a stable CBG pricing framework with government-backed administered price to provide revenue certainty and improve the commercial viability of CBG projects. ये सब उसके डिटेल्स हैं। देखो,
एकदम से इंट्रिकेट डिटेल्स जानना जरूरी नहीं होता, लेकिन आपको उस स्कीम से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो पता होना चाहिए, जिससे कि आप डिड्यूस कर पाओ आपके ऑप्शंस में कि क्या सही हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बिल्कुल भी फैक्ट्स अंदर जा जाके रटना नहीं होता है, लेकिन आइडिया आपके पास होना चाहिए, रफ आइडिया कि उस स्कीम में क्या है। तो गोवर्धन स्कीम जो है बायोगैस से रिलेटेड है और इसको अभी अपग्रेड कर दिया गया है। ये सब कुछ कुछ आइडियाज होंगे तो आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। और ये चैलेंज फंड होता है सीबीजी इकोसिस्टम का। तो चारों स्टेटमेंट सही थे, डी आंसर था। और ये क्वेश्चन लिया गया है पीआईबी से, और ये पीआईबी का ही कॉपी फोटो कॉपी पेस्ट है, जिसमें कि ग्रोथ इंजन्स जो है 6 ग्रोथ इंजन्स गोवर्धन स्कीम के दिए गए हैं। आप इसको देखो और आर्टिकल भी जाके पढ़ो, पीआईबी में सही आर्टिकल है। पीआईबी बैकग्राउंडर का तो आर्टिकल पढ़ा करो, ये बढ़िया होता है। ये मैंने हेडलाइन यहाँ पे पेस्ट कर दिया स्क्रीनशॉट, आप जाके इससे ढूंढ सकते हो। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, देखो ये, इसको मैं पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद इस पर बात करेंगे। वीरा गल्लू विच वॉज recently seen in the news refers to option A memorial stone erected in the honor of warriors who died displaying exceptional valor, option B stone pillar erected by medieval rulers to commemorate the foundation of new capitals, sculptured slabs recording royal grants made to temples and Brahmadev villages, option D megalithic stone circles used for astronomical observations during the Iron Age। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार यूपीएससी में आते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि वर्ड के आधार पे आपको कुछ कुछ डिसाइड करना होता है, और इसमें पैनिक नहीं करना है कि मैंने नहीं सुना, कभी नहीं भी सुना, एक बार ऑप्शन ध्यान से पढ़ो फिर आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखो यहाँ वीरा, वीरा मतलब क्या होता है, हीरो। हीरो बोले तो कि हीरो कौन होंगे, वॉरियर्स जो वैलर के साथ लड़े होंगे। तो हीरो स्टोन होता है ये वीरा गल्लू, ठीक है, आंध्रा में। तो आंसर इसका ये है। स्टोन पिलर इरेक्टेड बाय मेडाइवल रूलर्स, ये भी नहीं है। स्कल्पचर स्लैब्स रॉयल ग्रैंड्स, ये भी नहीं है। मेगालिथिक स्टोन सर्कल, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मेगालिथिक का तो अलग ही है, मतलब ग्रेव के चारों तरफ बड़े बड़े स्टोन्स लगाते थे, उसको मेगालिथ कहते थे। ये देखो एक्सप्लेनेशन आंसर है। द 12th सेंचुरी वीरागल्लू डिस्कवर्ड इन नीरागंडू कर्नाटका। कर्नाटका में ये वीरागल्लू 12th सेंचुरी का डिस्कवर किया गया हीरो स्टोन, जो होयसाला रूलर्स विष्णुवर्धन के बारे में दिया गया है इसमें डिटेल्स, ठीक है, इंस्क्रिप्शन में। वीरागल्लू आर मेमोरियल स्टोन्स इरेक्टेड इन ऑनर ऑफ वॉरियर्स, वहां पे जो दिया था वही चीज है। फाउंडेशन और विक्ट्री पिलर्स आर डिफरेंट कमेमोरेटिव मॉन्यूमेंट्स, दे आर नॉट वीरागल्लू। विक्ट्री पिलर्स क्या होता है, जिसमें कि अगर कोई राजा जीता है कोई जगह, तो वहां पे विक्ट्री पिलर्स इरेक्ट कराते थे। अशोका क्या है कलिंगा में, और इसी तरह से बहुत सारे राजा लोग जो है कि विक्ट्री पिलर, चोरा चेला पांड्या, सभी जहाँ पे विक्ट्री हो वहां पे पिलर लगा के मतलब लोगों को बता देते कि हाँ मैंने जीता है यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे, वॉर में जीता है उन्होंने। लैंड ग्रांट्स टू द टेम्पल ऑफ और ब्रह्मदेव विलेजेस आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट और टेम्पल इंस्क्रिप्शन नॉट इन वीरागल्लू। तो ये ब्रह्मदेव विलेजेस वाला इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया जाता था, टेम्पल इंस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्टा में ये भी नहीं है। मेगालिथिक स्टोन सर्कल्स तो बताया मैंने कि अलाइनमेंट बिलोंग डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन एसोसिएटेड विद प्री हिस्टोरिक बरियल्स और एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स। तो ये बरियल से रिलेटेड था, बरियल प्रैक्टिस से। तो आंसर हमारा यही है। और ये आर्टिकल लिया गया द हिंदू के इस एमसीक्यू बनाया द हिंदू के इस आर्टिकल से। यहाँ पे दिया हुआ हेडलाइन, आप जाके पढ़ो। इसी के साथ हमारा आज के 5 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए एमसीक्यूज के और सॉल्यूशंस के, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ये क्यूआर कोड है, ये नाम है। और बाकी हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए किसी भी तरह का। वी आर अ ग्रोइंग यूपीएससी चैनल एंड वी आर हियर टू डू वंडर्स। थैंक यू वेरी मच।